हर मेजर पोर्ट पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाया गया है नोडल ऑफिसर की तरह से, और वो सभी को कम्युनिकेट किया गया है। एलपीजी वेसल्स को, एलपीजी कैरियर वेसल्स को मेजर पोर्ट्स पे प्रायोरिटी बर्थिंग दी गई है, और ports have also implemented facilitation measures such as permitting storage of affected Middle East bound cargo as transshipment cargo, allotting additional storage space, ad hoc vessel berthing, prioritizing handling of perishable and returning export cargo, expediting back to town movement in coordination with customs, and enhancing bunkering support wherever feasible. इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी, भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड हैं। 1 नाविक मिसिंग है। इसके अलावा 4 नाविकों को थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाहर आ गए। जिनको इंजरी हुई थी सब बाहर आ गए हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डीजी शिपिंग सारे जो नाविक हैं उनके घरों के, उनकी फैमिली से या उनके नेक्स्ट ऑफ किन से संपर्क में हैं। कल की ही बात है, हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी डीजी शिपिंग के, वो एक नाविक के जो एमईए ने कल ब्रीफ किया था, उनके घर पे गए, उनके परिवारजनों से मिले भी थे। इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है, जिससे कि हम जितनी असिस्टेंस हो सके उनको प्रोवाइड कर सकें, अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डीजी शिपिंग के थ्रू या पोर्ट्स के थ्रू। Authorities, ship managers and recruitment agencies are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render all assistance. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we continue to closely monitor the prevailing maritime situation in the Persian Gulf region, which is continuously evolving. Thank you. Thank you, Rajesh Sinha ji. अब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो डिप्लोमेटिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कुछ जानकारी दें। Thank you, sir. We have continued our engagement and conversations with countries in West Asia. जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हम लोगों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें, ताकि इस मसले को, जो मसला है वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द। कल विदेश मंत्री की, ईरान के विदेश मंत्री श्रीमान सैयद अब्बास अरांची जी से बात हुई और दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय वार्ताओं मुद्दों पर और साथ ही साथ ब्रिक्स के मुद्दों पर बातचीत हुई। We at the Ministry of External Affairs, I had told you that we have established a MEA control room which is functioning at speed. This was established on 4th of March, and till date we have received 900 phone calls and 200 emails. We also observed that the number of queries, emails, telephone calls and emails have progressively come down, which means that people are less concerned about their families in the Gulf region. Obviously, because several of them, the transit passengers, stranded people, they have come back to India. As and when we receive queries in the control room, we do real-time hand-holding for people here. We patch them up with our mission and see to it that both sides have started talking so that the issue at hand can be resolved. Over and above, I would like to add that from Iran, we have had
in the last few days, including today, 170 Indian nationals have crossed through the land border into Armenia. Several of them have come back to India, and others would be coming back to India over the next few days, taking commercial flight options that are available from Armenia to India. So that is what I had to report. हमारे साथ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे गल्फ रीजन से संबंधित कुछ जानकारी हम सबको दें।